سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹی وی ٹوڈے میں خوش آمدید۔ میں ہوں احتشام الرحمان اور میں ہوں کنزہ بشیر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو آگاہ کریں جتنا کسان کو مضبوط کریں گے ملک اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کسان کارڈ تقریب سے خطاب، کہا کسان پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کسان کارڈ زبردست تصور ہے۔ جی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسان کارڈ کسانوں کی زندگیاں تبدیل کر دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بہت تھوڑے وقت میں کسان کارڈ پر کام مکمل کیا، وقت ثابت کرے گا کہ آپ ماڈرن زراعت کی طرف جا رہے ہیں۔ کسان کی اب آپ مدد کرنے جا رہے ہیں کسان کارڈ سے۔ یہ جو آج ایک بڑا زبردست کانسیپٹ آپ نے لانچ کیا کسان کارڈ کا، یہ انشاءاللہ ٹرانسفارم کرے گا پاکستان کو، تبدیل کرے گا، کیونکہ جو کسان ہے وہ اصل میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ جتنا ہم اپنے کسان کو مضبوط کرتے رہیں گے، ہم اپنے ملک کو مضبوط کریں گے۔ تو یہ جو آج آپ نے اناؤنس کیا کسان کارڈ، یہ شروعات ہے، یہ زبردست کانسیپٹ ہے۔ پہلے تو اس سے جو جہانیہ گردیزی نے میرے خیال میں بات کی کہ افریقہ کے ایک ملک نے شروع کیا، جیسے جیسے آپ ٹیکنالوجی کی طرف جاتے رہیں گے، کرپشن نیچے آتی رہے گی، لوگوں کی زندگی آسان ہوتی رہے گی۔ ٹیکنالوجی اب ایک ایسی چیز ہے کہ سارا پیپر ورک ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشوت لی جاتی ہے، جدھر انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے دوسرے انسان سے، وہ انٹریکشن۔ وزیر اعظم عمران خان ملتان میں فلاحی اور ترقیاتی منصوبوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا آدمی لانا چاہتا تھا جو پاکستان کو ترقی دے اور اس کا جینا مرنا ملک کے لیے ہو۔ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنایا تو پہلے ٹیسٹ کیا۔ افسوس ہے بزدار کی کارکردگی کا جائزہ لیے بغیر تنقید کی گئی۔ 2.5 سال پہلے بالی ووڈ کا ایک ایکٹر کبھی بوٹ اور ٹوپیاں پہن کر پانی میں کھڑا ہوتا تھا۔ امیر ترین ممالک میں ہیلتھ انشورنس نہیں دی جاتی۔ آج عثمان بزدار پورا زور لگا رہے ہیں، دسمبر تک ہر شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا۔ بزدار نے فٹ پاتھ پر سونے والوں کے لیے دونوں میں پناہ گاہیں بنائیں۔ صرف ہمارے دور میں جو کہ کسانوں کو اضافی ملا پیسہ صرف گندم میں، وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ ہمارے دور میں جو گندم کی قیمت بڑھی ہے 2 سالوں میں، وہ 500 روپیہ ہے۔ 500 روپیہ گندم کی قیمت، سپورٹ پرائس بڑھا ہے، اور جو اضافی اس کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ آیا ہے وہ 500 ارب روپیہ ہے۔ اور یہ جو ٹوٹل گنے کی قیمت جو کسانوں کو ملی ہے، مونگی کی قیمت 1100 ارب روپیہ اضافی پاکستان کے کسانوں کے پاس گیا ہے۔ سب سے زیادہ غربت پاکستان میں دیہات میں ہے، اور یہ جب 1100 ارب روپیہ دیہات میں گیا ہے، تو جو میرا اصل مقصد ہے میری حکومت کا پہلے دن سے، جو میرا مقصد ہے کہ ہم نے پاکستان میں غربت کم کرنی ہے۔ چیف منسٹر صاحب، آپ کو اس لیے میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ بڑے تھوڑے ٹائم پہ آپ نے یہ کسان کارڈ کے اوپر یہ سب کچھ مکمل کیا، اور اس میں آپ کے جن لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا، حبیب بینک اور پنجاب کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈپارٹمنٹ اس نے، اور پھر آپ کی ایڈمنسٹریشن نے، سب نے جنہوں نے مل کے کیا، میں آپ کو اس لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ بڑی تیزی سے آپ نے کام کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں کرونا کی تیسری لہر کے دوران افواج پاکستان معاونت کے لیے تیار ہے۔ افواج پاکستان قوم کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائے گی۔ جی ان کی جانب سے کہا گیا کہ کرونا کی تیسری لہر پہلی 2 لہروں کے مقابلے میں زیادہ جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ملک کے 16 متاثرہ شہروں میں پاک فوج کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے جوان ملک کے دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور مدد کریں گے۔ کرونا کی تیسری لہر کے دوران پاکستان آرمی کی سول اداروں کی معاونت کے لیے ڈپلائمنٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہی دینا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کرونا کی تیسری
लहर जारी है और ये लहर पहली दोनों वेव से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो रही है। पूरी दुनिया और बिलखसूस हमारा खित्ता इस वबा से शदीद मुतासर हो रहा है। वबा की शिद्दत और तेज़ रफ्तार फैलाव की वजह से अमवात में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की तादाद में बेपनाह इजाफे से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद दबाव का शिकार है। मुल्क में इस वक्त ऑक्सीजन की कुल पैदावार का 75% से जायद सेहत के शोबे के लिए मुख्तस है। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल अगर बरकरार रही तो इंडस्ट्री के लिए मुख्तस ऑक्सीजन भी सेहत के शोबे के लिए वक्फ करना पड़ सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त कोविड-19 से मुतासरा तकरीबन 90,000 एक्टिव केसेस मौजूद हैं। पॉजिटिविटी रेशो ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है। मुल्क भर में 51 शहरों में पॉजिटिविटी रेशो 5% से ज़्यादा है, जबकि इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, सवाबी, पंजाब में रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, सिंध में कराची और हैदराबाद, बलूचिस्तान में क्वेटा और आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, ये बिलखसूस वो शहर हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो इंतहाई ज़्यादा है। इन 16 शहरों में इस ही मुनासिबत से पाकिस्तान आर्मी की इन्हांस्ड डिप्लॉयमेंट कर दी गई। 23 अप्रैल को अब तक कोरोना वबा की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात हुई, जिसमें 157 अफराद उस दिन कोरोना की वजह से अपनी ज़िंदगी से महरूम हो गए। इस वक्त मुल्क भर में 570 अफराद वेंटिलेटर्स पर हैं और 4,300 कोरोना से मुतासरा अफराद क्रिटिकल कंडीशन में। कुछ शहरों में अस्पतालों में 90% से ज़ायद वेंटिलेटर्स ऑक्यूपाइड है। अप्रैल महीने में कोरोना से अमवात का औसत तनासुब सबसे ज़्यादा रहा है। 26 फरवरी 2020 से आज तक 17,187 अफराद पाकिस्तान में इस वबा की वजह से अपने प्यारों से बिछड़ चुके हैं। इस वक्त दुनिया में कोरोना की वजह से शरह अमवात 2.12% है, जबकि इस वबा के दौरान पाकिस्तान में पहली मरतबा दुनिया के मुकाबले में शरह अमवात बढ़कर 2.16% तक पहुँच चुकी है। वबा की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की हिफाजत, सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मुल्क भर में पाकिस्तान आर्मी को आर्टिकल 245 के तहत सिविल अदारों की मुआवनत के लिए तलब किया गया है। अवाम का एतमाद अफवाज पाकिस्तान का असासा है। आजमाइश की इस कड़ी में पाकिस्तान आर्मी अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए अवाम की सेहत और हिफाजत के लिए हर नाज़रीन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज के जवान पहुंच गए हैं। SOPs पर अमल दरामद में कोताही नहीं चलेगी। पाक फौज SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए आ गई है। रेंजर्स, FC और GB स्काउट्स भी खदमात सर अंजाम देंगे। वजारत दाखिला ने पाक फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाक फौज की खिदमात लेंगे। सरगोदा में पाक फौज और पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। शहरियों को SOPs पर अमल दरामद की हिदायत की गई। गुजरांवाला में SOPs पर अमल कराने के लिए पाक फौज आ गई। सियालकोट, कैंट और दीगर इलाकों में भी पाक फौज ने गश्त किया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद दुकानें सील कर दी गईं। पेशावर में भी पाक फौज जिले इंतजामिया के साथ इन एक्शन नजर आई। सिंध हुकूमत ने पाक फौज की मदद तलब कर ली है। महकमा दाखिला सिंध ने वफाकी सेक्रेटरी वजारत दाखिला को खत लिख दिया है। सिविल हुकूमत की मदद के लिए पाक फौज तैनात करने की सिफारिश की गई है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन की जानिब से कोरोना की कौमी चैलेंज पर सियासत चमकाना सोचनाक है। हुकूमत ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हर मुमकिन ज़रूरी इकदाम उठाया है। अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाई गई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स में इजाफा किया गया है। बेहिस अपोजिशन को अवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं, उनकी अकल पर मातम ही किया जा सकता है। कोरोना में दुखी इंसानियत को तनहा छोड़ने वाले अनासिर खुद तनहा हो चुके हैं। जनाब वज़ीर आज़म, आपको याद होगा आपने 8 फरवरी को हमें ज़रूरी इस्लाहात का मिशन सौंपा और तकमील के लिए 6 माह का टाइम दिया। इनमें किसान कार्ड का इजरा भी शामिल था। अल्लाह ताला के फजल व करम से वक्त से पहले इसको मुकम्मल कर लिया और आज हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर
ملتان میں کسان کارڈ پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں۔ کسان کارڈ کے اجرا سے کاشتکاروں کو بہت سے فائدے اور سہولتیں ملیں گی۔ اس کارڈ کے ذریعے کسان آسانی سے زرعی قرضہ لے سکتا ہے، جس میں بیج، کھاد، پیسٹی سائڈ پر سبسڈی حاصل کر سکتا ہے اور فصلوں کا بیمہ بھی کرا سکے گا۔ محکمہ زراعت نے صوبہ بھر میں 30,000 سروس شاپس قائم کیے ہیں، جہاں کسان کارڈ استعمال کیا جا سکے گا۔ حالیہ خریف کے سیزن میں حکومت پاکستان کے اشتراک سے ابتدائی طور پر کسان کارڈ کے ذریعے 17 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو آسان اور باسہولت سبسڈی ملے گی، جس کے ذریعے کاشتکار کسی بھی رجسٹرڈ صاحب سے کھاد، بیج اور زرعی ادویات خریدتے ہوئے سبسڈی حاصل کر سکے گا۔ کسان کارڈ کے ذریعے کاشتکاروں کو براہ راست سبسڈی کی ادائیگی کا مقصد اس منصوبے میں آسانی اور شفافیت کو یقینی بنانا ہے۔ میں یہاں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے 300 ارب کے تاریخی زرعی ایمرجنسی پروگرام پر پنجاب میں تیزی سے عمل درآمد جاری ہے، جس سے کھالوں کی اصلاح، ماڈل زرعی منڈیوں کا قیام، گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ اور تیلدار اجناس کا فروغ شامل ہے۔ حکومت پنجاب کاشتکاروں کو زرعی مشینری کی فراہمی پر 47 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ بزدار صاحب، آپ تونسا اور ڈی جی خان میں کورونا پھیلاتے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ترجمان عظمیٰ بخاری کا جوابی وار، کہا صوبے کا چیف ایگزیکٹو کورونا ایس او پیز کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے فوج بلا لی گئی ہے۔ عظمیٰ بخاری کا کہنا تھا کہ عقل سے پیدل اور نا سمجھ لوگ قوم پر مسلط کر دیے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جاہلیت اور نااہلی میں اعلیٰ درجے کی ڈگریاں بنی گالہ یونیورسٹی سے حاصل کی ہوئی ہیں۔ بنی گالہ یونیورسٹی میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم کرنے کے خصوصی کورسز کرائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب منطق ہے، سرکاری اجتماعات میں کورونا چھٹی پر اور اپوزیشنز کے پروگرام سے کورونا پھیلتا ہے۔ شہباز شریف نے جیل سے نکلتے ہی تمام پارٹی کارکنوں کو کورونا ایس او پیز کی پابندی لازمی بنانے کی ہدایات جاری کی۔ جس ملک کا وزیر اعظم ماسک نہیں پہنتا، وہ عوام کو ماسک کا پابند کر رہا ہے۔ ناظرین، کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے بعد عوام کو ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے کے لیے پاک فوج نے لاہور کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ کسی شخص کو غیر ضروری طور پر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایمرجنسی کی صورت میں شناختی کارڈ دکھانا لازمی ہوگا۔ سرکاری ملازمین دفتر کا کارڈ دکھا کر سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے۔ فوج 150 گاڑیوں میں گشت کرے گی۔ گزشتہ روز کرونا کی صورتحال کے پیش نظر فوج کی خدمات حاصل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا تھا۔ کرونا کی صورتحال خوفناک ہو گئی۔ لاہور کے تمام سرکاری اسپتالوں کے وینٹیلیٹرز بھی بھر گئے۔ جی ناظرین، تفصیلات کے مطابق جناح اسپتال کے 40 وینٹیلیٹرز پر 40 مریض ہیں۔ سروسز اسپتال کے 32 اور یکی گیٹ اسپتال کے تمام 10 وینٹیلیٹرز پر مریض زیر علاج ہیں۔ میو اسپتال کے 84 میں سے 78 اور جنرل اسپتال کے 40 میں سے 37 وینٹیلیٹرز فل ہیں۔ پی کے ایل آئی کے لیے مختص کیے گئے 8 وینٹیلیٹرز پر 7 مریض زیر علاج ہیں۔ گنگا رام اسپتال کے 20 وینٹیلیٹرز پر کورونا سے متاثرہ 13 خواتین زیر علاج ہیں۔ کوٹ خواجہ سعید اسپتال میں مختص کیے گئے 3 وینٹیلیٹرز پر 2 مریض موجود ہیں۔ مجموعی طور پر تمام سرکاری اسپتالوں میں 1.25 کروڑ کی آبادی والے شہر میں صرف 13 وینٹیلیٹرز خالی رہ گئے ہیں۔ آکسیجن بیڈز پر درجنوں تشویشناک مریض وینٹیلیٹرز کے منتظر ہیں۔ لواحقین وینٹیلیٹرز کے حصول کے لیے در بدر ہو گئے ہیں۔ ادھر معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں کہ پنجاب میں وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز کی تعداد بڑھانے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافے سے اسپتال پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ متعلقہ محکمہ آکسیجن سپلائی کرنے والی کمپنی سے مسلسل رابطے میں رہیں گے۔ اسپتالوں میں آکسیجن فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔ آکسیجن سلنڈرز مہنگے داموں بیچنے والوں سے آہنی ہاتھوں نمٹیں گے۔ عوام ایس او پیز پر عمل کو یقینی بنائیں اور قیمتی زندگیوں کی قدر کریں۔ دوسری جانب اسد عمر کی زیر صدارت این سی او سی اجلاس میں 40 سال سے اوپر کے افراد کی ویکسین کے لیے رجسٹریشن کا کل سے آغاز کا فیصلہ کیا گیا۔ جہاں وفاقی وزیر اسد عمر نے ٹویٹ میں کہا کہ اگر آپ 40 سال یا اس سے اوپر کے ہیں تو رجسٹریشن کرا لیں۔ 50 سال سے اوپر کے افراد کی واک ان ویکسینیشن بھی کل سے شروع ہو جائے گی۔
अहम खबर है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ईद उल फितर पर 7 छुट्टियों की सिफारिश कर दी है। सराय का कहना है कि NCOC ने वजारत दाखिला से सिफारिश की है कि 10 से 16 मई तक ईद की छुट्टियां दी जाएं। वजारत दाखिला छुट्टियों की समरी वफाकी काबीना को अरसाल करेगी, जिसकी मंजूरी के बाद ही वजारत दाखिला नोटिफिकेशन से जारी होगा। कोरोना की तीसरी लहर तेज होने पर सिंध हुकूमत ने बड़े फैसले कर लिए। सूबे भर में तमाम तालीमी इदारे और सरकारी दफातर मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का अहम इजलास हुआ, जिसमें मुतादिद अहम फैसले किए गए हैं। सूबे में तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का फैसला किया गया है। दफातर में सिर्फ महकमे के सरबराहान ज़रूरी स्टाफ के साथ हाजिरी देंगे। सिंध में इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 29 अप्रैल से बंद हो जाएगी। इंटर सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का फैसला कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। अगर केसेस बढ़े तो बाजार भी मुकम्मल बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना से निपटने के इंतजाम मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। और नाज़रीन, आपको खबरदार कर दें कि मुल्क भर में कोरोना के वार जारी हैं। वायरस 24 घंटों में मजीद मुल्क भर में 70 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 17,187 हो गई हैं। मजीद 4,825 अफराद में वायरस की तशखीस हो गई है। 24 घंटे के दौरान 50,161 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद भी 79,219 हो गई है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.61% रही। कोरोना के सबब सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में हुई है, जहां 7,990 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि सिंध में 4,599, खैबर पख्तूनख्वा में 3,134, इस्लामाबाद में 665, गिलगित बल्तिस्तान में 105, बलोचिस्तान में 232 और आज़ाद कश्मीर में 462 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की तादाद 73,450, खैबर पख्तूनख्वा 1,14,077, पंजाब 2,90,788, सिंध 2,78,545, बलोचिस्तान 21,744, आज़ाद कश्मीर 16,591 और गिलगित बल्तिस्तान 5,258 अफराद को कोरोना से मुतासिर कर चुका है। मुल्क भर में कैम्ब्रिज इम्तिहानात जारी हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने इम्तिहानी हॉल और SOPs से मुतल्लिक तस्वीर शेयर कर दी। शफकत महमूद ने इम्तिहानात देने वाले तलबा और तालिबात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए मुश्किल हालात में सख्त फैसले किए। ब्रिटिश काउंसिल इंसदाद कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेगी। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था कि जो तलबा वालिदैन अभी मुतमिन नहीं, वो अक्टूबर-नवंबर में इम्तिहानात में शिरकत कर सकते हैं। अक्टूबर-नवंबर में इम्तिहानात के लिए कोई इजाफी अखराजात नहीं लिए जाएंगे। बकिया पेपर्स लेने के लिए कैम्ब्रिज से 13 माह की शर्त पर नजरसानी का कहना है। कैम्ब्रिज गैर मामूली सूरत हाल को मद्देनजर रखे। पुरुमीद हूँ कि कैम्ब्रिज का जल्द मुस्बत फैसला आएगा। नाज़रीन, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, आगे बढ़ते आपको खबर दें कि दुनिया भर में कोरोना से 31,22,000 हलाकतें हो चुकी हैं। 14,77,00,000 मरीज। अमेरिका में 5,86,000, ब्राज़ील में 3,90,000, भारत में 1,95,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,02,858, बरतानिया में 1,27,428 और सऊदी अरब में 6,900 अमवात हो चुकी हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,86,152 तक पहुंच गई है, जबकि 3,28,24,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,73,06,000 से जायद है और 1,95,116 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ब्राज़ील में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,43,40,000 से जायद हो गई है और 3,90,925 अफराद हलाक हो चुके हैं। फ्रांस में 54,98,000 से जायद अफराद मुतासिर और 1,02,885 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। रूस में 47,62,000 से जायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 1,08,232 है। अब आपको बताएं कि भारत में मोहलिक वायरस कोरोना ने तबाही मचा दी। 24 घंटों में मजीद 2,806 हलाकतें हो गईं। नाज़रीन, भारत का हेल्थ सिस्टम कोरोना के सुनामी में बह गया है। 5वें रोज भी 3,52,000 से ज्यादा मरीज सामने आ गए हैं। 2,800 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं।
मजमूई हलाकतें 1,95,000 से तजावुज कर चुकी हैं। भारत में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,73,13,000 से बढ़ चुकी है। दारुल हुकूमत नई दिल्ली सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले शहरों में से है, जहां अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। बेड मिल रहे हैं, ना ही ऑक्सीजन मिल रही है। अस्पताल इंतजामिया ने हाथ खड़े कर दिए हैं। लवाहिकीन अपनी मदद के तहत ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। भारत के मुख्तलिफ शहरों के शमशान घाटों में लाशों को जलाने का सिलसिला 24 घंटे बिला तातुल जारी है। अस्पताल मौत, बेबसी और लाचारगी की तस्वीर बन चुके हैं। बाहर फुटपाथों पर भी मरीज बिस्तर की उम्मीद में दम तोड़ रहे हैं। मरीजों की तड़प और लवाहिकीन की मदद की दुहाइयों से फजा सोगवार है। भारत में हर मिनट में 243 नए केसेस और हर 4 मिनट में एक मौत वाक़ हो रही है। आलमी बरादरी ने इस मुश्किल घड़ी में भारत की हर मुमकिन इमदाद की पेशकश की है। अदालती उमूर से अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की नजर सानी की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं। दुराने समाज जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमती वकील से पूछे गए 3 सवालात पर एतराज उठाते हुए कहा कि जानबूझकर नया मवाद अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जा रहा है। अदालत ने FBR में सरीना ईसा के खिलाफ तमाम कार्रवाइयां काल अदम करार दे दी। विफाकी वजीर कानून फरोग नसीम को तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत कर दी। मुझे शर्मिंदगी है, नैब चेयरमैन की भर्ती की है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की कौमी एहतसाब ब्यूरो पर लफ्जी कोलाबारी। कहा आज 2 नंबर काम इंसाफ के इदारे में हो रहे हैं। जान से ये भी कहा गया कि PDM इत्तेहाद से मुतालिक बोले कि जो PDM को छोड़ गया है हम उसे कुछ नहीं कह सकते। हम हाजिर हैं जी, हर वक्त जब भी नैब बुलाएगा जवाब भर के उनको दे देंगे। और मुझे शर्मिंदगी सिर्फ एक अपॉइंटमेंट की और वो चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की है। यकीन करें कि इस आदमी ने, इस इदारे ने इस मुल्क को तबाह कर दिया। और जिस किस्म के काम यहाँ पर हो रहे हैं, यानी आज चीनी का स्कैंडल इनको नजर नहीं आता, लेकिन 2000 जो PPL के MD की अपॉइंटमेंट हुई थी वो सबको याद आ गई है। नैब जो मुझसे मोहब्बत कर लोगों से करता है, मैं भी नैब से मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज भी उनको कहा मैं कि मैं 70 दिन यहाँ के रह गया हूँ, फिर बिस्तरा लगा दे फिर लेट जाते हैं आपका शौक पूरा हो जाए। तो बाकी जो जर्नलिस्ट मिले आर्मी चीफ से वो रिकॉर्डेड बात नहीं है। अगर बाजवा साहब ने मुझे याद फरमाया तो मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। हमने 10 महीने साथ काम किया है, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ, मेरा ख्याल है वो शायद मेरी भी इज़्ज़त करते हों। जहाँ तक कश्मीर का मसला है, कश्मीर का मसला 73 साल से है। UN की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस पे ये मामला चल रहा है। इसका हल भी UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन जब फैसला होगा वो पार्लिमान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो फैसला सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे कर सकते हैं। अगर ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट है तो फिर हमें एक नुमाइंदा पार्लियामेंट के ज़रिए ही कश्मीर के मसले पर अगर कोई फैसला करना है वही करेगा, वरना एक इबहाम मज़ीद पैदा हो जाएगा जिसका हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। देखिए, जो आपको छोड़ जाए उसको मदऊ नहीं किया जाता। पीपल्स पार्टी और ANP ने PDM को छोड़ने का फ़ैसला किया है और मौलाना साहब ने उनको नज़रसानी का मौका दिया है। अगर वो नज़रसानी करके PDM का एतमाद बहाल कर दें तो हम भी यही चाहते हैं कि एक बड़ी ताकत के साथ। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन के ग्रुप की मुलाकात कल तय पा गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान असम्बली से मुलाकात करेंगे। वफद वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन के केसेस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जहांगीर तरीन की बात सुने जाने का इंदिया 19 अप्रैल को दिया गया था। NA 249 कराची में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मरियम नवाज का कहना है, हल्के में सबसे बड़ा मसला पानी का है। अगर मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो वो हल्के के हर घर तक पानी की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। जी हाँ, मरियम नवाज ने कहा कि मैं कराची आकर हल्का NA 249 के लोगों से मिलकर दिल की कुछ बातें करना चाहती थी। कोरोना की वजह से मैं आप सबकी जिंदगियों को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। हल्का NA 249 में सबसे बड़ा मसला पानी का है। अगर मिफ्ता इस्माइल कामयाब हुए तो वो हल्के के हर घर तक पानी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ का नाम जब भी आता है तो आवाम के जहन में तरक्की, तामीर और अमन का ख्याल आता है। नवाज शरीफ ने कराची समेत पूरे मुल्क को अमन दिया। मुस्लिम लीग नून ने 2 साल में कराची में ग्रीन लाइन बनाई। पोर्ट कासिम पर LNG प्लांट्स और कोयले से बिजली पैदा करने के प्लांट्स
रिकॉर्ड मुद्दत पे लगाए। इसी वाले से आम खबर है, मरियम नवाज ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने की बात इसलिए की कि ताकि ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मरियम नवाज के बयान पर वजाहत, हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम मुल्तान में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगा रहे हैं। धमकी भी दी, कहा अगर रायवेंट पर ऑपरेशन हुआ तो पर्चा राजा बिशारत के खिलाफ कटवाएंगे। आपको बता रहे हैं कि अगर ऑपरेशन हुआ तो पर्चा राजा बिशारत के खिलाफ कटवाएंगे। मरियम नवाज ने हुकूमत को मुद्दत पूरी करने की बात इसलिए की ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएं। लीगी रहनुमा अता तारड़ की मरियम नवाज के बयान पर वजाहत, हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आजम मुल्तान में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर तख्ती लगाएं। पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई से निकालने के लिए आसिफ जरदारी मुतहरिक हो गए। साबिक सदर के मौलाना फजलुर रहमान से बैकडोर राबते। पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा फजलुर रहमान को साबिक सदर का पैगाम पहुंचा दिया। जी हाँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ख्वाहिश का इजहार किया कि पीडीएम के आइंदा होने वाले इजलास में पीपल्स पार्टी को मदऊ किया जाए। हम अपोजिशन इत्तेहाद का ही हिस्सा रहना चाहते हैं। उन्होंने मौलाना को अपने पैगाम में मजीद कहा कि माजी को भूल कर हुकूमत के खिलाफ नई सफ बंदी की जाए। आप पीडीएम के सरबराह की हैसियत से पीपल्स पार्टी को इजलास का दावतनामा जारी करें। जराये के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने पीपल्स पार्टी की वापसी के लिए शर्त आयद कर दी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने का ऐलान करे तो सोचा जा सकता है। एक और अहम खबर है, हुकूमत के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। मौलाना फजल रहमान का दावा, कहते हैं पूरी कुव्वत के साथ भरपूर अवामी राब्ता मुहिम शुरू की जाएगी। जो साथी अलहदा हुए हैं उनको अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। इस हुकूमत का खात्मा, इससे कौम की निजात, एक आज़ादाना इंतखाबात कौम को वापस देना, उस पर इसके लिए हम पुरज़्म भी हैं और पूरी कुव्वत के साथ इंशाअल्लाह इसमें हम मैदान में होंगे। और रमज़ान शरीफ का महीना बहरहाल जब उम्मत मुस्लिमा पे आता है तो बहुत से उनकी मामूलात कुछ वक्त के लिए ज़रा मुअत्तल हो जाती हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ तक पीडीएम है, पीडीएम अपनी पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। हमारे कुछ साथी जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने गलत अंदाज के साथ पीडीएम को छोड़ने की बात की है, लेकिन उनको जो हमने नज़रसानी की अपील की है उस अपील पर हम अब भी कायम। हम चाहते हैं कि वो नज़रसानी करें इस सूरत हाल पर, और अगर उन्होंने गलती की है तो गलती कबूल कर लेना और तस्लीम कर लेना, और फिर अक्सरियत की जो एक जमहूरी राय होती है उस राय को कबूल करना और तस्लीम करना, उसके सामने सर तस्लीम खम हो जाना, ये है असल में जमहूरियत के तकाजे जो हम समझते हैं कि पूरे। नासरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि IMF ने इमरान खान को बिजली के बिल बढ़ाने की हिदायत की तो हुकूमत ने बिजली महंगी करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने IMF की हिदायत पर पाकिस्तानी मईशत को चलाकर मुल्क की वक़ार बलिया मेट कर दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान अवाम की जेबों से 700 अरब रुपए से ज़ायद रकम निकालने का मनसूबा बना चुके हैं। अवाम महंगे बिलों के जरिए इमरान खान की IMF डील में नाअहली का खमियाजा भुगत रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि इमरान खान 21 रुपए यूनिट तक बिजली महंगी करके अपनी कारकर्दगी के गुन गा रहे हैं। हुकूमत को अपनी नाकामियों का इदराक तक नहीं। अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक आग बगुला हो गए। कहा कमजोर मुआशी हालात ने लोगों को डिप्रेशन का शिकार कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का हुकूमत पर तनकीदी बार करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म मुल्क को NGO की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का सारा जोर झूठ के जरिए मीडिया पर प्रोजेक्शन है। माजी के हुक्मरानों ने भी मुल्क को अंधेरों में धकेला है। सिराजुल हक ने मजीद कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। लाहौर जैसे शहर में भी वेंटिलेटर्स खत्म हो गए हैं। आवाम से अपील करता हूँ कि SOPs पर अमल दरामद करें, कौमी इज्तिमाई पर रुजू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मंगल को होगा। जी हाँ, इजलास में विफाकी काबीना 9 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। विफाकी काबीना PIA मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज करने की मंजूरी देगी। PIA के रीस्ट्रक्चरिंग प्लान और गर्दशी कर्जों पर ब्रीफिंग भी एजेंडे में शामिल है।
वफाकी काबीना नॉन ट्रीटी ममालिक की जानिब से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्तों पर गौर करेगी। वजारत सेहत के 4 फास्ट ट्रैक मंसूबों पर अमल दरामद के लिए खुसूसी छूट देने की समरी एजेंडा में शामिल है। काबीना पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की भी मंजूरी देगी। काबीना कमेटी बराए तवानाई, कमेटी बराए कानून साजी और ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी काबीना की कार्रवाई ऑनलाइन निज़ाम पर मुंतकिल करने की तैयारियां। कार्रवाई ऑटोमेशन निज़ाम के तहत होगी। काबीना अरकान को टैबलेट्स, PC फ्राहम, एजेंडा, समरियां, मिनट्स ऑनलाइन फ्राहम किए जाएंगे। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उलमाए कराम की निशानदही पर तब्दीली निसाब का सख्त नोटिस ले लिया है और एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस करवा लिया। इस्लामियात के सिवा दीगर तालीमी निसाब से इस्लामी मवाद निकालने के मामले पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने उलमा की निशानदही पर तब्दीली निसाब का सख्त नोटिस लिया। मुतल्लिका महकमे ने गवर्नर पंजाब की हदायत पर एक रुकनी कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी इलामा ताहिर अशरफी की गवर्नर पंजाब से गवर्नर हाउस से मुलाकात हुई। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद और मौलाना हनीफ जालिंदरी भी मौजूद थे। गवर्नर की हदायत पर महकमा ह्यूमन राइट्स एंड मिनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट ने नया नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मौलाना ताहिर अशरफी, मौलाना हनीफ जालिंदरी और अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर ने गवर्नर पंजाब से इजहार तशक्कुर किया। सेक्रेटरी स्कूलों को शुएब सिडल कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद रोकने की हदायत भी कर दी गई। उधर फ़लस्तीन में इसराइल के इंसानियत सोज मुजालिम और बेजा गिरफ्तारियों पर पाकिस्तान ने शदीद मज़म्मत की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मुसलमानों को हरासा करने और मासूम फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारियों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से ही इसराइली फोर्सेस के गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फ़लस्तीन में हालिया वाक़यात पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। जाहिद हफीज़ चौधरी का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नमाज के लिए जाने वाले मासूम फ़लस्तीनियों को हरासा और गिरफ्तार किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से गैर कानूनी इक़दामात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हुए पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। नाज़रीन, पाक बहरिया की जानिब से रमज़ान के महीने में कोरोना वायरस की हालिया शदीद लहर से मुतासरा साहली और क्रीक्स के इलाकों में रिहाइश पजीर मुस्तहिक़ खानदानों में राशन तकसीम किया गया है। पाक बहरिया ने साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के इश्तराक से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों के मुस्तहिक़ खानदानों में 1100 राशन बैग्स तकसीम किए। राशन तकसीम की मुहिम के दौरान पाक बहरिया के जवानों ने बलूचिस्तान के शहरियों और गवादर और माड़ा, जबकि सिंध के दही इलाकों बिन कासिम, केटी बंदर, सजावल, जोहड़ जमाली और शाह बंदर में एक माह के राशन पर मुश्तमिल थैले तकसीम किए। पाक बहरिया की राशन तकसीम मुहिम का मकसद साहिली और क्रैक्स इलाकों में रिहाइश पजीर नादार खानदानों की इमदाद करना है। मुल्क भर में मुसलसल तेजी से बढ़ने वाली डॉलर की कदर में दोबारा महंगी हो गई। अमरीकी करेंसी की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई। जी हाँ, गुज़श्ता पूरे हफ्ते के दौरान रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में बढ़ोतरी देखी गई थी। 5 कारोबारी रोज के दौरान रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। पहले कारोबारी रोज अमरीकी करेंसी 6, दूसरे रोज 9, तीसरे रोज 25 पैसे और चौथे रोज 22 पैसे, पांचवें रोज अमरीकी डॉलर मजीद 41 पैसे महंगा हो गया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ट्विटर पर जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान इंटर बैंक में रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कीमत में 26 पैसे इजाफा और नई कीमत 154 रुपये 13 पैसे हो गई है। और अब पेश की जाएंगी बैनुल अक़वामी खबरें।